Hello, friends. Here I am with story of a chartered accountant who is sheer epitome of perseverance and strong determination. We have with us CA Meena Sharma. She cleared her chartered accountancy at the age of 42 after a gap or after a struggle of 25 years. Welcome you, Meena ji, at Gyan Station and today's episode. Thank you, thank you, thank you, Dipti ji. It's good to We are very excited to deep dive into your inspiring CA journey. So, would you like please share us how it was and how was your CA journey? thank you, Dipti ji. It's good to be with you and share my journey through Gyan Station with every chartered accountant and the student who is pursuing CA examination. Actually, I got married at an early age of 20. Okay. Okay, and then but I still continued my studies, and in I had my first child in 2004, and but I was determined to continue my studies, and then after with 1 year child in my lap, and when I was studying, my actually my elder one is always behind me, beside me with his toys. I am with my books. Lovely, That's the lovely. way. That's the way I have given my exam. कि ओके मम्मा आ रही है, तुम पढ़ो, तुम रहो, मैं आती हूँ, तुम रहो. That I cleared my group 2, inter group 2 in 2004. Okay, and then I cleared my final group 1 in 2006. Oh, sorry, in 2008. I cleared my group in 2008, and now after a gap of 15 years, I cleared my CA or my group 2 in November 2023. Wow. It's a huge gap of 15 years of perseverance. So, That is how was it all the time? Like, how you managed it? All your emotions, so many circumstances, situations we need to deal with. actually what happened with me when I have cleared my group 1 in 2008, and I had my both the children, and I could not manage my studies and my household work, and it's very, sometimes it was very tiring for me and it's very frustrating for me, or with actually my husband was working in the bank with transferring locations all the time. I could not do it, so I have given up my studies that time. कि Right. मेरे से नहीं हो पा रहा था, मीन्स, और नहीं हो पा रहा था. Then now I moved to Mumbai 8 years back. Now my children have grown up, and फिर मेरे को later on I got some stability. ठीक है, फिर भी चल रहा था, तो मेरे को लगा कुछ तो करना है, क्या करें, इतना दिन पढ़ा, क्या करें. Then मैंने क्या किया, I was started teaching because I really love to teach and really love to learn and study. तो Right. कुछ करें, तो मैंने टैक्स पढ़ाना स्टार्ट किया. वहां भी एक प्रॉब्लम आ गई. प्रॉब्लम इज दैट मैंने गया कि चलो आई विल टीच टैक्स. तो जो ट्यूशन सेंटर में से कि हमारे पास तो टैक्स का टीचर है, बट वी डोंट हैव जीएसटी टीचर. और व्हेन आई लेफ्ट माय स्टडी देयर वाज नो डीएसटी, वो तो सर्विस टैक्स था. एंड देन मुझे कुछ तो करना है, ऐसा हो गया था. फिर मैंने गया यूट्यूब, थैंक्स टू ऑल द यूट्यूब टीचर्स, मैंने यूट्यूब से जीएसटी एक्ट को सीखा, एंड आई स्टार्टेड लविंग दैट. अच्छा लगने लग गया, अच्छा लगने लगा. एंड फिर मैंने जीएसटी पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड पढ़ाता रहा, बट दिल में एक सीए की चाहत तो छुपी हुई थी, दैट आई मस्ट से. बट लग रहा था कि मेरे को आता है, बट ठीक है, उसको रखा अंदर. बट कोविड कम एज ए बूम टू मी. कोविड आया और मैं चल रहा था कुछ कुछ, जैसे आई वाज डूइंग सम स्मॉल असाइनमेंट, लाइक कोई बोल रहा है कि जीएसटी का रिवीजन वीडियो दे दो फॉर दिल्ली बेस्ड फर्म, एंड आई वाज डूइंग जीएसटीआर रिटर्न्स का वेबिनार भी आई हैड डन, थोड़ा थोड़ा, जस्ट टू कीप माय हंगर अलाइव फॉर स्टडीज. Right. And when I was surfing YouTube videos, मैंने देखा, I saw the YouTube videos of small brothers of rankers, AIR1 Okay. rankers. वहां मेरे को लगा, डेविड सेन कि ऐसे हो जाएगा, 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, सीए पास करना बहुत इजी है.
दैट टाइम आई वाज थिंकिंग, अरे इतने छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कर सकते हैं, वो मेरे बेटे के बराबर, मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं तो अपने आप को बहुत होशियार समझती थी. And you know, Dipti, I must tell you the fact, this is the fact, I could not sleep. Whole night I was thinking about the same, कि ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं? और ये बोल रहे 70 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, मैं 50 में नहीं ला सकती हूँ. So that day, you know, वो मेरे को चैलेंज किया कि नहीं मैं भी करती हूँ. और मैंने विदाउट टेलिंग एनीवन चुपके से, अभी प्रॉब्लम आ गया नया नया. नाउ आई लेफ्ट माई स्टडी इन 2008, अभी 2018-19 है, एट द टाइम ऑफ कोविड. एसएसपी पोर्टल, ये करो बना, मैंने चुपचाप सब कुछ किया. आई गॉट इनरोल्ड इन माई यू नो सीए फाइनल ग्रुप 2. और इफ यू नो द हिस्ट्री ऑफ सीए, दे आर कीप चेंजिंग देयर सिलेबस. एसईएमपी आ गया, अरे ये क्या है एसईएमपी? यू नो, मैं कोई से पूछ रही हूँ दैट कर रही थी, यू नो, मेरे को टैक्स आता था, बट एसईएमपी इज ऑल टुगेदर न्यू सब्जेक्ट. Correct. बट चुपचाप मैंने सब यूट्यूब का करने लगा विदाउट टेलिंग एनीवन. इवन आई वाज नॉट टेलिंग माय हस्बैंड कि मैंने लिया है. कि Okay. चुपचाप करते हैं, हाँ, किसी को नहीं पता था, बस लैपटॉप लेके. और यू नो, एट द टाइम ऑफ कोविड आई हैड एम्पल्स ऑफ टाइम, बिकॉज कोई चाइल्ड को ड्रॉप और पिकअप नहीं था, कोई क्लासेस नहीं था, घर पे सब थे, तो मेरे को टाइम मिलने लग गया. और वो इंटरव्यू मेरे को, मतलब यू नो, जैसे था कि बुलेट के जैसे मेरे दिमाग में चला, बुलेट एक फायर आ गया कि नहीं मेरे को भी करना है. और वो मेरा छुपा हुआ जो ड्रीम था ना, Yes. बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, Lovely. वो मेरा वापस जग गया. फिर ठीक है, मैंने स्टार्ट किया. उसी समय मेरे बेटे का जेई भी था. Oh. यू नो, एक मॉरल डिलेमा भी था कि यू नो मेरा बच्चा एक कितना लाइफ का बड़ा एग्जाम में जा रहा है. यू नो, मदर्स गिल्ट Yes, yes. कीप फाउंडिंग ऑन मी. कि छोटे बच्चे का तो थोड़ा निग्लेक्ट किया, बड़े का ऐसा लगा कि फिर भी आई वॉज डूइंग माई स्टडी. और उसको भी जा जाके बोल रही थी कि चलो साथ में पढ़ते हैं. बोले मम्मी, आई एम द ओनली वन इन द वर्ल्ड हु इज स्टडिंग विद माय Studying with मदर. his mother. ये कल जल्दी उठेंगे कल, ओके लेट्स गेट अप. एक मैंने यू नो आई मेड ए ग्रुप ऑफ वेकअप एट 3. Wow. आई मेड ग्रुप वेकअप एट 3. और भी मेरे जो रिलेटिव्स के बच्चे थे, दे आर स्टडिंग, चलो एक ग्रुप बनाते हैं, पढ़ाई करते हैं. दैट कीप्स ऑन यू नो गोइंग कि चलो करते हैं, बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं. फिर करते रहा, बट सब चल रहा था. इसका जेई आ गया. माई मदर गॉट कैंसर. Okay, in which year it was? इट वॉज 22. Okay, 22. Mhm. 22 शी गॉट कैंसर. और दिस थोड़ा सा आगे भी चला गया था, बट यू नो शी वाज इन बॉम्बे, तो मेरे को उनके साथ जाना पड़ता था. आई हैव टू कीप And your उनके साथ. son, your son Jay was also there. In which month? Yes, yes. Jay, actually, my mother got, we know the cancer diagnosis in January, and my son Jay was due in April. Oh. April 18, still clearly remember April 18, the date of my son Jay exam. April 19, my mother's chemo date. Or in May 20, in 11, or I don't know the exact date, 15 May my exam was there. But if you know the chemo 15 दिन से लगता है. हाँ. तो 19 अप्रैल को लगा, फिर मई में था, मतलब मेरे एग्जाम के ठीक 5 दिन पहले. और प्रॉब्लम इज दैट माय मदर कुड नॉट ट्रस्ट एनीवन. वो सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करती है कि तुमको चलना पड़ेगा, यू हैव टू गो विथ मी. क्योंकि आई वाज थ्रू विथ हर ऑल हिज ट्रीटमेंट. मेरे को सब डिटेल्स पता था, डॉक्टर्स का पता था. और इफ यू हैव एवर बीन टू टाटा, यू नो देयर यू नो ऑपरेशंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, इससे लेके आओ, स्लिप लेके आओ. बट स्टिल मैंने क्या किया, आई जस्ट क्या करती थी, व्हाट आई वाज डूइंग दैट, कि मैं अपना यूट्यूब का वीडियोस चला लेती थी. जी. और उसको सुनती, जस्ट आई जस्ट लिसन ऑल द रिविजनरी वीडियोस ऑफ सर, एंड इट हेल्प मी अ लॉट. कि चलो क्या करें, नहीं कर पा रहे हैं. एक्चुअली वी वे वहाँ वेटिंग टाइम बहुत होता है. तो वी वे वेटिंग फॉर 1 hour 2 hours. आई केप्ट लिसनिंग ऑल दिस वीडियोस. और जब मेरी मम्मी का ज्यादा तबीयत खराब था, तो शी गॉट एडमिटेड फॉर 1 week. तो आई वॉज देयर विथ माई मॉम. तो मैं क्या करी, चुप्पे से बुक ले गई, कोई को नहीं पता. Okay. No one knew that I had the book. जब मम्मी सो जाती थी रात में भी, और आते थे, तो एक वहाँ एक रूम, मतलब एक होता है ना अटेंडेंट के लिए एक बेड होता है. हाँ. तो आई केप्ट स्टडीइंग. सो हाउ इस तरह से मैंने सरवाइव किया, थोड़ा बुक लेके. क्यों, बिकॉज मेरे को था कि मई में एग्जाम देना, आई हैव टू गिव एग्जाम इन मई. दिया, बट मेरा हो नहीं पाया. आई गॉट 180. फिर मेरे को लगा कि ठीक है, just only 20 marks.
हाँ, तो यू नो रिवैलिडेट माय फेथ कि मैं कर सकती हूँ। Hmm. फिर भी नहीं हो पाया, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आता रहा। देन द प्रॉब्लम केम कि आई वाज नॉट ए रेगुलर स्टूडेंट। मेरा स्पीड का इशू था। मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा स्पीड का इशू है, मेरा 200 इसीलिए है, आई कुड नॉट कंप्लीट माय पेपर। देन आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट, पेपर्स, और उस पे मैंने धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट किया कि Okay. कैसे 180 को वो किया जाए, 200 cross 200 करना है. लाया जाए। Yes. हाँ. देन समहाउ ये करने के बाद आई गॉट 220 एंड देन आई क्लियर्ड माय ग्रुप 2। Very inspiring. और वो जहाँ चाहा वहाँ रहा. Where there's a will, there's a way, and lovely. And but again, as you told ki you went to the classes, so how you faced entering the classroom with so many students sitting in, and that are of such a young age compared to us. So how was it, and how you prepared yourself, how you broke that ceiling, broke that ice of communicating with youngsters? यस यस दैट एक्चुअली मेरे को भी डर लगता था। आई वाज यू नो एप्रीहेंसिव, मींस मैं दिखाती मेरे को लगता नहीं, बट आई न्यू एट दैट टाइम व्हेन आई वाज एंटरिंग इन द क्लासरूम और लाइब्रेरी और समथिंग, एवरीवन इज लुकिंग एट मी, दैट आई नो एवरीवन वाज लुकिंग एट मी, बट मींस आई जस्ट इग्नोर्ड कि नहीं, वो पहला था कि पहला एक बार एंटर करो रूम में, ठीक है कोई देख रहा है, अब मेरे को क्लियर करना है, मेरे को, और सॉरी मेरे को था कि आई हैव टू क्लियर एट एनी कॉस्ट। देख रहे हैं बट दे आर यू नो समटाइम उन्होंने मेरे को ऑब्वियसली स्टर्न लुक दिया, अजीब सा लुक दिया, बट दे सपोर्टेड मी। हाँ, और माय सन, माय एल्डर वन, यू नो ही वाज ऑलवेज पुलिंग माय लेग्स, मम्मी कोई नहीं आपको आंटी बोला बोले मैंने आई एक्सेप्टेड माय एज, आई एक्सेप्टेड माय शॉर्टकमिंग्स, मैंने नहीं कर सका, आई एक्सेप्टेड द सिचुएशन, बट नाउ अभी मेरे को करना। एंड वेरी बिग थैंक्स टू यू नो द ब्यूटी ऑफ द सीए, द कोर्स ऑफ सीए, दैट वी कैन appear at any age. Yeah, that's very true. We can appear at any age, number of attempts also. There's no restrictions. So this is the flexibility which CA course offers. Thanks to our institute. Yes, thank you. And the institute ICI Navi Mumbai branch also helped me a lot. Yes. They It also also helped me a lot. library. Library was there, and I was just like to share one anecdote with you. Yeah. I just came, Navi Mumbai branch is just 5 minutes away from my home. It came in fact maybe in 2022. 22. So I went to, yeah. 22. I went to the Bhagwat sir, the person in charge there, and when कि मेरे को आना है पढ़ना है, तो he just look at me and say, as a student or member? Okay. As a student or member? So मैंने कहा, "Sir, would have told कि नहीं आऊंगी as a member, अभी as a student I am coming." इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बस आई जस्ट कि मेरे को पढ़ना है, आई जस्ट कि चलो कुछ कर रहा है, और वैसा नहीं था कि बन ही जाऊंगी, ये था कि चलो कीप गोइंग, आज का करते हैं कल का नहीं सोचते हैं। ठीक है। और उसने भी बहुत हेल्प किया, इट हेल्प मी अ लॉट। और मेरा रूटीन ऐसा था, मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बेटे का जेई में हो गया, मेरी मम्मी ठीक हो गई, फॉर गॉड ग्रेस शी इज हेल्दी एंड हार्टी, and she is very happy for my success. Actually, I was about to say कि she saw you becoming the chartered accountant. That is the biggest happiness which any child give to their parent. And after so many fluctuations, situations, handling life situations, really. My mom is always proud of me. Yes. बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा करती है, जो भी बोलूंगी you always you know keep appreciating me. तो बहुत अच्छा करती है, every time we will meet, she will appreciate me. बहुत अच्छा करती है, तो now she is very happy. तो उस समय भी ये था कि जब मेरा बेटा गया जेई में, स्टोरी वहीं रही गया, तब मेरे को फिर टाइम मिलने लग गया, मम्मी ठीक हो गई, फिर मेरे छोटे वाला फिर भी था, उसका थोड़ा स्टडीज को मैंने नेग्लेक्ट किया, एंड ही कीप सेइंग मी, मम्मी मुझे कब पढ़ाओगी, अपना मत पढ़ो, थोड़ा मुझे पढ़ा दो, मेरा टेस्ट आने वाला है। उसका क्या हुआ था कि मेरे को नवी मुंबई लाइब्रेरी ऐसे हेल्प किया कि 7:20 पे बस आता था, और 1 minute अवे फ्रॉम द बस स्टॉप, दैट यू नो, 7:20 पे बच्चे को ड्रॉप किया,
10 बजे मेरे भाई आती, 7:20 to 10 पढ़ाई किया, फिर घर पे जाके काम किया, फिर अगेन कम बैक टू 12 और 1 आया, फिर 3 बजे वो स्कूल से आता था, फिर 3 आवर्स पढ़ा, फिर इवनिंग में इफ आई गॉट द टाइम या मेरे बेटी की क्लासेस होती थी, क्लास में उसको ड्रॉप किया, फिर 1 आवर हुआ, फिर आके घर आ गया। एंड भागवत सर यूज्ड टू टेल मी, आप 1 आवर में क्या करते हो, आप घर पे ही पढ़ लो। हमरे सर आपको वैल्यू नहीं पता, 1 आवर में 2 सम होता है वो घर में जाओ तो लगेगा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। बिल्कुल सो सही। आई केप्ट माई बुक्स देयर, जाती थी आती थी, ऐसे ऐसे कर करके मेरा एक्चुअली आई माई टारगेट वाज कि बिफोर एग्जाम 6 मंथ में 6 आवर हो, ठीक है। जैसे मई में एग्जाम है, मार्च अप्रैल में, सो आई हैव टू जगल लाइक दिस, 2 आवर्स यहाँ, 2 आवर्स यहाँ, 2 आवर्स, फिर घर में जाके सो जाओ। एंड YouTube videos help me a lot. Okay. It helped me. Lessons, lectures. हाँ, because ये time utilize when we are traveling. तो ये travel का time I will utilize from the listening all the YouTube videos. Okay. So थोड़ा थोड़ा करके, very nice. थोड़ा घड़े बोलते ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। से घड़ा, every, यानी you made the best utilization of your time, Yes, and this yes. is the lesson for all the CA students कि whatever time is available to them, जितना है, don't think about time for at a stretch कि 5 hours they will नहीं get, मिलेगा, and थोड़ा थोड़ा never ever wait for an ideal situation in life for any aim or goal in your any My goal you motto have. was They that. never wait for an ideal situation. That's what I understand. Because कभी कुछ ideal situation, सब कुछ हाँ perfect नहीं life है। में होने नहीं वाला है। जो जहाँ जितना है, जैसा है, आप start कर दीजिए बस। My motto was that कि मेरा situation I know कि favorable नहीं था, but जो situation को I have to make favorable for me. हाँ हाँ, That was my motto. right. तो which is one thing which made you stick to that CA profession कि नहीं, करना ही है, like all those 25 years. My love for law and taxation, it keeps me going. नया सीखने का चाहत कि Right. जब भी कुछ नया सीखती हूँ ना, I really liked a lot कि हाँ ये मेरे को पता नहीं था, ये मेरे को पता चला। That keeps me going कि चलो डिग्री मिले नहीं मिले, चलो पढ़ते तो रहते हैं। पढ़ते रहते हैं, it gives you a Learn for feel good factor. feel good fact. Feel good factor. Okay, nice. And what about those failures of our not achieving day-to-day targets? आज सोचा इतना target, which everyone face in their preparations कि आज इतना सोचा ये कर लेंगे, target they set कि this so, and they are not able to achieve, frustrations of not able to complete the things which they have decided, or frustration of failures. How you managed it? From your point of view, I want to know, like, how you managed it. एक्चुअली क्या ना, मेरे को आई रियलाइज आफ्टर सम टाइम कि लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। अपने जो प्लान करते हैं कभी नहीं होता है। सो ठीक है, अगर 6 आवर का नहीं तो 4 आवर्स का तो हुआ है, दैट वी विल मैनेज। आई विल कीप चेंजिंग और रीशेड्यूलिंग माय रूटीन कि आज ये नहीं हुआ तो बाद में करते हैं, या आई हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल विथ माय टाइमिंग्स एंड रूटीन्स। थोड़ा सा चेंज कर लेती थी, चलो ये चैप्टर बाद में कर लेंगे, या फिर बोले ना कि वही यूट्यूब वीडियोस जो छूटा है, समझो नहीं पढ़ पाई, दैट आई यूज टू लिसन, जो ये चैप्टर छूट गया वो यूट्यूब में सुन लेते हैं अगर नहीं पढ़ पा रही हूँ, अगर कुछ दूसरा काम है। बिकॉज समटाइम सिचुएशंस आर नॉट इन आवर हैंड्स, सो वी हैव टू कुछ उपाय नहीं, वी हैव टू कीप रीशेड्यूलिंग एंड फ्लेक्सिबल, वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अरे Yeah. आज का नहीं हुआ, लेकिन आज का दिन गया तो 59 डेज तो और बाकी है। आई हैव टू कीप काउंटिंग द डेज कि अच्छा इतना बाकी है, इतना करना है, इतना बाकी है, इसमें ये कर लेंगे, इसमें ये कर लेंगे। फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और कभी टाइम मिलता था तो आई ट्राई टू कंपनसेट ऑल दोस मिस्ड आवर। जब ज्यादा टाइम मिल रहा है तो उसमें अपना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का चेष्टा करती थी, दैट एक कि जल्दी पढ़ो या बोल बोल के पढ़ो, या वॉक विद द टॉक, वैसा होता है ना, घूम घूम के पढ़ो। कैसे, हाउ टू, मेरे को था कि आई एम नॉट ए रेगुलर स्टूडेंट, तो 4 आवर में वो कर रहे हैं, वो मेरे को 2 आवर्स में करना है। दैट यू हैव टू डिजाइन फॉर योरसेल्फ कि क्या आपको सूट कर रहा है। Correct. And sometimes thoughts of like comparing ki
other students are doing far better than me as they are young, they are, and अभी मैं कैसे कर पाऊंगी वो thoughts को कैसे, because it's but natural. अभी आप CA students है, after in being in profession also, many professionals also have this thought, like how you overcome those thoughts. ये तो आता था, ये तो है कि बट आई हैव टू कीप What you रिमाइंडिंग speak to माई सेल्फ, yourself, at yes, that keep time, what reminding you that I'm speak not a to yourself, that student. is more important. I have to keep reminding myself that I'm mother of two children. Yeah, student नहीं हूँ, means I can't compare them. But yeah, मेरा जो बड़ा बेटा है प्रेम, he helped me a lot. मम्मा you are, जैसे कि जैमा, मतलब they are very fast, मैं बोलती थी तो he keeps saying me कि मम्मा you are not a regular student. You just keep reminding yourself that you are a 40-year-old woman. Means मेरा efficiency एक 20-year-old बच्चे के जैसा नहीं हो सकता है. बट यू नो आई जस्ट कीप अपराइजिंग माई सेल्फ कि नहीं कम. मैं बोलती थी आई हैव टू टेल एवरीवन या इवन टू प्रियन कि चाहे जो भी हो, व्हेन वी आर सिटिंग विद द सेम एग्जामिनेशन और वी आर सेम, वी आर इक्वल, आई हैव टू कम्पीट विद एन 20-year-old बॉय और गर्ल. Yes. सो आई हैव टू कीप अपराइजिंग कि जल्दी या टाइमर लगा के लिखना. मेरा स्पीड का इशू था, दैट आई टोल्ड अर्लियर. सो आई यू नो मैंने इम्प्रूव किया उन चीजों पे. So that means you worked on those points जहाँ पे जो hindrance restrictions which were yes. restricting you from clearing the examination. You worked hard on this, focused on problem areas, resolved them, and moved ahead and got that CA degree. Yes. Yes. Okay, nice. And again, the same thing. What is your strongest support system? Obviously, my family. My family. They keep me going. And I really want to know if it's going to be an biography of Meena Sharma, CA Meena Sharma, what's going to be the title of that? Actually, I know it's too early. Too early. अभी तो life शुरू I have to ऐसी बहुत सारे milestone achieve करने हैं. I hope 10 साल बाद अपने फिर ऐसे मिले. Definitely we will meet after 10 years. After 10 years. With a copy of your autobiography. Yes. Sure. Lovely. And define Meena Sharma in 4 words. Hardworking. Okay, hardworking, resilience. Quick learner. Lovely. Honest. That's very important. My observation was for 25 years that कि student क्या करते हैं, they are not honest with themselves. वो रूटीन बनाते हैं बट उतना पढ़ते नहीं है. मीन्स 2 hours में 2 चैप्टर होना चाहिए, वो नहीं करते हैं. दे आर नॉट ऑनेस्ट विद देयर वर्क, यू नो. तो ऑनेस्टी आप रखेंगे ना कि हाँ मेरा ये सिचुएशन है, मैं ये एज की हूँ, उस हिसाब से वर्क करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी. माय ऑब्जर्वेशन इज दैट ऑनेस्टी इज वेरी मच रिक्वायर्ड. वेरी मच. Whatever we pursue, that shows our character, that shows our integrity. Yes. And last, what is one life lesson you want to share with all? Yes, never give up. Believe in yourself. If कोई दूसरा करता है तो आप भी कर सकते हैं. If other one is doing that, you can also do. But you know, you require hard work. But never believe in yourself. Never give up. Wonderful. Wonderful talking to you, Meena ji, and sharing your journey. I feel very proud and happy to take your name again and again and calling you. Yes, here I have wonderful time with CA Meena Sharma. And it's so good to have you. Definitely your story, your journey is going to inspire millions of people out there who are going to watch it. It doesn't matter whether they are doing CA or going for any aim, goal in their life, but never give up and believe in yourself is the quick takeaway for today's conversation at Gyan Station. Thank you so much all for being. And here, I promise you, I'll keep coming up with many more inspiring stories in this series. So stay tuned with us. Thank you.